Namaste all of you. Welcome to Abhyuday online classes. Today we are going to discuss class 8 subject science chapter 6 combustion and flame part 5th. In this part we are going to deal with pollution. See, if combustion and plain fuel is burned, then what it produces? Pollution. So we are going to deal with that, how we can save this, how we can save our environment. Okay, see, all carbon containing fuels, that means coal, petrol, they are all for fossil fuel, or we can say hydrocarbons. So the main content in them is carbon. All carbon containing fuels such as wood, coal, petrol, diesel, kerosene, LPG when burned produces gases like carbon monoxide, dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. In addition to these gases, generally in most solid fuels, smoke is also produced. Whenever we burn wood, a lot of smoke is there, and if it is wet, then a lot of smoke is there. These gaseous products and unburned carbon particles cause air pollution. See, when all this thing burns, so small particles present in the air, that is what we call as air pollution. The solid fuels such as wood, coal, after burning also leave behind ash, isn't it? राख बच जाती है ना? This ash, if not disposed of properly, may cause air and water pollution. What happened? That ash, राख जो रहती है बिल्कुल फाइन पाउडर रहता है, तो वो फाइन पाउडर जब उड़ता है तो क्या होता है, वो बिल्कुल बारीक मिट्टी की तरह उड़ेगा और रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करेगा. So pollutants in the air may cause disease, many disease and reaction in human beings. Effect of this various pollutants on human being are summarized below. As I've told you, there were cross problems, diseases. So what? Dust, allergic reaction, respiratory problems. Smoke, respiratory problems. Carbon monoxide, respiratory problems may even lead to death. Carbon dioxide, greenhouse effect, atmospheric temperature rises, increase of atmospheric temperature. Oxide of sulfur, damage lung, produce acid rain and cause corrosion. Oxides of nitrogen, lung congestion and produce smoke. So these are some of the effects of air pollution. Now greenhouse effect. See, what is greenhouse effect? When the carbon dioxide, carbon monoxide increases in the atmosphere. See, an increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere leads to increase in temperature on the earth. This is called greenhouse effect. It leads to global warming. If greenhouse effect is there, then what happened? Temperature increases, and if temperature increases, it leads to global warming. Heating up of the Earth atmosphere due to trapping up of the infrared radiation by carbon dioxide in the atmosphere is called global warming. See, in simple we can say that when infrared radiation is trapped by the atmosphere, it doesn't go back. क्या होता है कि जो सूरज की किरणें आती है वो कुछ एब्जॉर्ब होती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है. तो जो रिफ्लेक्ट होती है उसे इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, वो वापस नहीं जा पाती और इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? कॉजेस चेंज इन द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन. क्रॉप कल्टीवेशन, अगर पूरा वेदर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, तो हम जब ट्वाइस जो बोनी करते हैं रबी एंड खरीफ की, वो कहीं ना कहीं सफर होगी. एडवर्सली अफेक्ट द मानसून रेन्स, बारिश कम होगी, ज्यादा होगी. कॉजेज एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, देयरबाय राइजिंग द लेवल ऑफ वाटर. पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट होगी तो क्या होगा? वाटर लेवल इंक्रीज होगा. In seas and ocean, this may even cause flooding and submerging of many low-lying areas. जब पोल्स पे आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा? जो भी लो लाइंग एरियाज है, जो समुद्र किनारे, नदी किनारे जो जगह है, वो पूरी तरह से पानी के अंदर चली जाएंगी. See, I have told sun radiation reaches to earth and half after reflection goes back. Okay, some of the gases, greenhouse gases like carbon dioxide,
It just, see, this is the earth. After earth, what is there? Atmosphere. Okay, this sun radiations are coming and after reflection they are going back. This infrared radiation from the earth surface, ये कहां से आ रही है? infrared radiation emitted from the earth surface. ठीक है, ये infrared radiations आ रही है, कुछ इसमें से absorb हो जाती है, कुछ sunrays वापस चली जाती है. ठीक है, तब क्या होता है? इसमें एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस. और इस ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है? इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो रहती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज इन टेम्परेचर दैट द अर्थ एक्सपीरियंस बिकॉज सर्टन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन. एनर्जी की जो सन की जो एनर्जी उसको ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है. विदाउट दिस गैसेस हीट वुड एस्केप. अगर ये वाली गैसेस नहीं होगी ना तो क्या होगा? हीट टोटल एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी. बट अभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो वो क्या करती है? उसको ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है. Heat would escape back into space and Earth average temperature would be about 60 degree Fahrenheit colder. Because these gases warm our world, they refer to as greenhouse gases. ठीक है, अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो क्या होता? ये जो रेडिएशन बैक वापस जाती है वो अपने आप एटमॉस्फेयर में चली जाती. बट अब ग्रीन हाउस गैसेस है तो वो उसे क्या करती है? ट्रैप कर लेती है. इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. और इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है. ठीक है. नाउ अब वन मोर, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हाईली पॉइजनस गैस. ओके, हाउ? सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट डेंजरस एयर पोल्यूटेंट. कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड combines with hemoglobin in the blood to form carbohemoglobin. Carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin cannot carry oxygen. देखिए क्या होता है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजन, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को खत्म कर देती है. ठीक है, और क्या बना देती है? कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो इससे क्या हो जाता है? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. और उससे क्या होगा? अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो सफोकेशन होगा. ठीक है, हम सांस नहीं ले पाएंगे. ठीक है, हमारा दम घुटेगा. ठीक, तो ये किसकी वजह से होगा? एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से. ठीक है, अब this is due to this reason that it is not advisable to sleep in a closed room with a coal fired fireplace. है ना, कई बार क्या होता है? जहां बहुत ठंड पड़ती है वो लोग क्या करते हैं? जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं, है ना, उसको पूरा रूम क्लोज करके सो जाते हैं. पर कभी नहीं करना चाहिए ऐसा. उससे क्या होता है? आग तो जल रही है, जितना ऑक्सीजन रूम में है वो जलने के लिए यूज हो जाएगा. फिर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन जाएगा? कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन. हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उससे सफोकेशन होगा और इवन डेथ भी हो सकती है. It is due to this reason that it is not advisable to sleep in a closed room with a coal-fired fireplace inside on a cold wintry night. When the room is closed, no fresh air can enter the room. Initial burning of coal would consume whatever oxygen is available in the room. Thus, coal would burn in a limited amount of oxygen, producing carbon monoxide. When inhaled, carbon monoxide will cause suffocation and even death. This I have explained you. Now, acid rain. One more effect of this acid rain. The rainwater containing dissolved oxides of nitrogen and sulfur is called acid rain. जब पॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा तो वाटर साइकिल में क्या होता है? जो चीज इवापोरेट होगी वही चीज वापस आएगी. ये तो साइकिल है. तो जब यहाँ से ऑक्साइड जाएगा तो बारिश में भी एसिड ही आएगा ना वापस. द एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. दोनों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है. सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर गिवन बिलो. एसिड रेन इज हाईली एसिडिक एंड करोसिव. एसिड रेन जो रहती है वो डेफिनेटली एसिड है. अगर स्किन पे गिरेगा या किसी चीज पे गिरेगा तो डेफिनेटली जैसे ब्रिजेस वगैरह पे गिरता है तो करोजन होता है ना, उसको वीक करता है वो.
ठीक है। और जब उस पे गिरेगा तो वीक करेगा, तो डेफिनेटली वो वीक हो जाएंगे। बड़े बड़े ब्रिजेस अगर वीक हो जाएंगे तो क्या होगा? एसिड रेन प्रमोट करोजन ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर्स। एसिड रेन रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन एंड मार्बल ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। आपने देखा होगा जो 7 वंडर्स है हमारे ताजमहल, उसके ऊपर व्हाइट कलर के एसिड के स्पॉट्स क्लियरली दिखे थे। अब उसे रिनोवेट कर लिया गया है, अब नहीं दिखते, अदरवाइज क्लियर एसिड के वहां पे डॉट्स थे, क्लीन वी कैन सी, है ना, क्योंकि वहां पर बहुत सारी आगरा में लेदर गुड्स की फैक्ट्रीज है, तो उसका बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया था। Acid rain reacts due to such reaction, marble get corroded and lose its shine. Acid rain also affect plants and aquatic life. It destroys plant, fish. Acid rain leads to loss of soil fertility. Definitely acid है, जब soil में जाएगा तो उसकी fertility को कम करेगा, ज्यादा तो नहीं करेगा, है ना। तो एसिड की जब किसी भी चीज पे गिरता है, डेफिनेटली एसिड है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या होगा, जब ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, पॉल्यूशन होता है, तो क्या होगा, एसिड रेन आएगी। और एसिड रेन हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए भी एज वेल एज जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए, सबके लिए नुकसानदेह चीज है। जुडिशियस यूज ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो बहुत लिमिटेड है, इसीलिए हमें अल्टरनेटिव वे यूज करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, ज्यादा टाइम तक यूज कर सके। अब क्यों हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी आ रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, आवर कंजप्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम हैज इंक्रीज एप्रिशिएबली। अब क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल हो गई हमारी, है ना, उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनती जा रही है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इनकी वजह से क्या हो रहा है, सबको अपना घर, गाड़ी, बंगला चाहिए, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। Our country does not have enough petroleum reserve to meet our requirements. About 2/3 of our petroleum requirement are met by import. 2/3 हमारी requirement हम दूसरों से लेके fulfill करते हैं। It is estimated that at the present rate of consumption, petroleum resources on the earth will be exhausted in about 50 years. हमारे पास सिर्फ 50 years का stock है, and deposit in about 100 years. Coal 100 years, petrol 50 years. ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। डिप्लीटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नोन एज एनर्जी क्राइसिस। इसी चीज को जो हमारे पास ये एनर्जी, ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये खत्म हो जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द जुडिशियस यूज। दैट मीन्स इफ वी वांट टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज, वी हैव टू यूज देम वेरी judicially. We have to use them very carefully so that we can last or we can use them for more time. Some useful suggestion: by slowing down the use of conventional fuels such as coal, petrol, natural gas and uranium, ठीक है, इनका यूज कम कर दीजिए। By encouraging the use of renewable source of energy, सबसे ज्यादा हमें किसे यूज करना है, wind, sunlight, hydro energy, geothermal energy, इन सब का हमें ज्यादा यूज करना है। By producing and using more fuel efficient machine, हमें ज्यादा fuel efficient machines को यूज करना है। And by using smokeless improved चूल्हा, stoves and burners, मतलब जिसमें ज्यादा कम पोल्यूशन हो और ज्यादा एनर्जी दे, ऐसी चीजें हमें यूज करना है। तो हम अपना एनवायरमेंट सेव कर सकते हैं और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं। So this is all in this chapter. Thank you.